عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کی اس آن لائن ویڈیو میں ہم آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات 12ویں جماعت علم معاشیات کا ہمارا چیپٹر نمبر 5 جو ہے بازار کی مختلف شکلیں، جس کو ہم فارمز آف مارکیٹ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات عام اصطلاح میں بازار سے مراد ایک ایسی جگہ جہاں پر خریدار اور فروشندہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اشیاء اور خدمات کا لین دین کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے روبرو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ایسے مقام کو ہم بازار کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات یہ عام اصطلاح میں ہم بازار کہتے ہیں، جیسے مہاڑ کا بازار، وہور کا بازار، مانگاؤں کا بازار ایک مخصوص مقام ہے۔ اس مقام پر فروشندہ اور خریدار ایک دوسرے کے سامنے روبرو ہوتے ہیں اور اشیاء خدمات کا لین دین کرتے ہیں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے اس مقام کا بازار کہتے ہیں۔ لیکن علم معاشیات میں بازار کے لیے ایک پرٹیکولر ڈیفینیشن ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم معاشیات نے بازار کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ بازار کسی مخصوص مقام کا نام نہیں ہے۔ بازار کے لیے مخصوص مقام کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بازار اسے کہا جاتا ہے کہ ایک خریدار اور فروشندہ ایک دوسرے کے کسی بھی ذریعے سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور اشیاء و خدمات کا لین دین کرتے ہیں، تو اسے بازار کہتے ہیں۔ بازار ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے خریدار اور فروشندہ ایک دوسرے کے قریب آتا ہے اور اشیاء و خدمات کی لین دین کرتا ہے۔ اب یہ ذریعہ جو ہے موبائل فون بھی ہو سکتا ہے، فیکس بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی خرید و اس کے علاوہ لیٹرز کے ذریعے، تار کے ذریعے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، موبائل کے ذریعے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات بازار سے مراد ایک کوئی مخصوص مقام نہیں ہے، بلکہ بازار سے مراد وہ ذریعہ ہے جس کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ خریدار اور فروشندہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اشیاء و خدمات کا لین دین کرتے ہیں۔ تو بازار ایک ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ موبائل فون بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی گرام بھی ہو سکتا ہے، یہ ذریعہ جو ہے ٹیلی فون بھی ہو سکتا ہے، فیکس بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے علاوہ کہنا چاہیے آن لائن شاپنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر، تو ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بہتر اگزامپل ہے کہ بازار ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے۔ بازار ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے خریدار اور فروشندہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اشیاء خدمات کا لین دین کرتے ہیں، تو اسے بازار کہا جاتا ہے۔ یہ ذریعہ جو ہے فون بھی ہو سکتا ہے، لیٹر بھی ہو سکتا ہے، تار بھی ہو سکتا ہے، فیکس بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ذریعہ جو ہے فیکس کے علاوہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ فیکس ہو سکتا ہے، تار ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ذریعے سے خریدار فروشندہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اشیاء و خدمات کا لین دین کرتے ہیں، تو اسے بازار کہتے ہیں۔ تو بازار کے لیے ایک مخصوص مقام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بازار کے لیے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بازار سے مراد، جب ہمارے ذہن میں بازار آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہور کا بازار، ہم سمجھتے ہیں کہ مہاڑ کا بازار، ایک مخصوص مقام ہمارے ذہن میں آتا ہے جہاں پر اشیاء خدمات کا لین دین کرنے والے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اشیاء خدمات کا لین دین کرتے ہیں، تو وہ مخصوص مقام بازار کہلاتا ہے۔ لیکن معاشیات کی نظر میں بازار سے مراد ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے خریدار اور فروشندہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، بائر اور سیلر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اشیاء خدمات کا لین دین کرتے ہیں، تو اسے بازار کہا جاتا ہے۔ جیسے شیئر بازار ہے، برتن کا بازار ہے، ہیروں کا بازار ہے، کپڑوں کا بازار ہے جس کو ہم ڈائمنڈ مارکیٹ، شیئر مارکیٹ، اس کے علاوہ گولڈ مارکیٹ، ہم مختلف مارکیٹ اس طرح سے، تو گولڈ مارکیٹ ہے۔ تو بازار کے لیے معاشیات کی نظر میں دکانوں کا ایک مقام پر ہونا ضروری نہیں ہے، خریدار اور فروشندے کا ایک دوسرے کے روبرو ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مادھیم کا استعمال کر کے، کسی بھی ذریعے کا استعمال کر کے
खरीदार और फरोख्त करने वाला एक दूसरे से खरीद अशिया खिदमत की खरीद और फरोख्त कर सकता है तो उसे बाजार कहा जाता है। तो सिंपली इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, बाजार से मुराद कोई मखसूस मकाम नहीं है बल्कि बाजार से मुराद एक जरिया है जिसके जरिए खरीदार और फरोशंदा एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे हम बाजार कहते हैं। जैसे बर्तन का बाजार, सोने का बाजार, हीरों का बाजार, इसके अलावा शेयर बाजार, सरमाए का बाजार वगैरह वगैरह, तो इसे बाजार कहा जाता है। तो अजीज तुल्बा तालिबात, अब बाजार को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो वक्त की बुनियाद पर बाजार को तकसीम किया गया है, वक्त जिसको टाइम की बुनियाद पर। दूसरा जो है वक्त के अलावा दूसरा जो है यहाँ पर वक्त या मुद्दत भी कह सकते हो आप इसको, मुद्दत की बुनियाद पर बाजार को, मकाम की बुनियाद पर बाजार को तकसीम किया गया। इसके अलावा मुसाबकत की बुनियाद पर भी बाजार को तकसीम किया गया है। तो बाजार को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वक्त के लिहाज से बाजार की तकसीम, तो वक्त के लिहाज से बाजार की जब तकसीम की जाती है तो इंतहाई कलील मुद्दती बाजार हम कह सकते हैं, इंतहाई कलील मुद्दती बाजार। दूसरा जो है कलील मुद्दती बाजार, कलील मुद्दती बाजार। तीसरा जो है तवील मुद्दती बाजार। चौथा जो है इंतहाई तवील मुद्दती बाजार। ये वक्त के लिहाज से बाजार को इतने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम कहेंगे, दूसरा जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और तीसरा जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और चौथा जो है वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से वक्त टाइम की बुनियाद पर, वक्त की बुनियाद पर या मुद्दत की बुनियाद पर बाजार को इन 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इंतहाई कलील मुद्दती बाजार यानी इंतहाई कलील मुद्दत के लिए जब खरीदार और फरोशंदे एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे इंतहाई कलील मुद्दती बाजार कहते हैं, इंतहाई कलील मुद्दती बाजार कहते हैं। जैसे जनरली हमारे यहाँ पर शबीना और जतरा वगैरह और मुख्तलिफ उरूस के वक्त मुख्तलिफ मकाम मखसूस दरगाहों और मखसूस मनाजिर के करीब जो है दुकानें लगाई जाती है तो एक मखसूस इंतहाई कलील मुद्दत के लिए होता है और उस इंतहाई कलील मुद्दत में खरीदार और फरोशंदे एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे इंतहाई कलील मुद्दती बाजार कहते हैं। तो सिंपली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इंतहाई कलील मुद्दती बाजार से मुराद फरोशंदा और खरीदार जब इंतहाई कलील मुद्दत के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं, अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे इंतहाई कलील मुद्दती बाजार कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलील मुद्दती बाजार। कलील मुद्दती बाजार से मुराद यहाँ पर ये है कि कलील मुद्दत के लिए खरीदार और फरोशंदे एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं, अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे कलील मुद्दती बाजार कहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे यहाँ पर तवील मुद्दती बाजार। तवील मुद्दत के लिए खरीदार और फरोशंदे एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे तवील मुद्दती बाजार कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर 4 है इंतहाई तवील मुद्दती बाजार। इंतहाई तवील मुद्दत के लिए जब खरीदार और फरोशंदे एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे इंतहाई तवील मुद्दती बाजार कहते हैं। तो इस तरह से वक्त के लिहाज से बाजार को इन 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर देखेंगे कि इंतहाई कलील मुद्दती बाजार में अशिया और खिदमत की रसद में फौरी तौर पर इजाफा नहीं किया जा सकता और कलील मुद्दती बाजार में अशिया खिदमत की रसद में
कहना चाहिए कि मामूली इजाफा किया जा सकता है। तवील मुद्दती बाजार में अशिया और खिदमत की रसद में जबरदस्त इजाफा किया जा सकता है। उसके अलावा इंतहाई तवील मुद्दती बाजार में अशिया और खिदमत की रसद में जबरदस्त इजाफा किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंतहाई कलील मुद्दती बाजार में अशिया और खिदमत की पैदावार को फौरी तौर पर अशिया और खिदमत की रसद में फौरी इजाफा नहीं किया जा सकता। से मुराद यहाँ पर ये है कि अशिया और खिदमत को फौरी तौर पर पैदा नहीं किया जा सकता और पैदा करने के बाद उसकी रसद नहीं की जा सकती। लेकिन कलील मुद्दत के अंदर कुछ हद तक रसद में इजाफा किया जा सकता है। ओवर टाइम करके इजाफा किया जा सकता है प्रोडक्शन के अंदर, जिसके नतीजे में रसद में इजाफा हो जाता है। तवील मुद्दत के अंदर क्या होता है? तवील मुद्दत के अंदर रसद में इजाफा किया जा सकता है और इंतहाई तवील मुद्दत के अंदर नई फैक्ट्री कायम करके नई मिशनरीज को प्लान करके रसद में जबरदस्त इजाफा किया जा सकता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, वक्त के लिहाज से या मुद्दत के लिहाज से बाजार की ये 4 किस्में हैं। ये ध्यान रखना है कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो ये था वक्त की बुनियाद पर क्या था? बाजार की किस्में। अब मकाम की बुनियाद पर बाजार की बहुत सारी किस्में। सबसे पहला यहाँ पर मकामी बाजार है। दूसरा जो हम ले सकते हैं जिलाई बाजार ले सकते हैं यहाँ पर। तीसरा जो है रियासती बाजार भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। चौथा जो है यहाँ पर मुल्की बाजार। और पांचवा जो है यहाँ पर बैनुल अक़वामी बाजार। तो ये मकाम की बुनियाद पर बाजार को इतने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला जो है मकामी बाजार से मुराद क्या? एक मखसूस मकाम के लोग से मुराद एक मखसूस मकाम पर रहने वाले खरीदार और फरोशंदे जब एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मकामी बाजार कहा जाता है। तो एक मखसूस मकाम, जैसे महाड़ एक मखसूस मकाम है। महाड़ के इर्द गिर्द जितने भी देहात हैं ये तमाम के तमाम महाड़ के बाजार पर मुनहसिर है। ये तमाम के तमाम महाड़ के बाजार पर इंहिसार करते हैं। तो ये महाड़ ताल्लुके के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं ये महाड़ बाजार में पहुंचते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं। यानी एक मखसूस मकाम के खरीदार और एक उसी मखसूस मकाम के फरोशंदे जब एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अशिया गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया खिदमत का खरीद फरोख्त करते हैं या अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मकामी बाजार कहा जाता है, लोकल मार्केट कहा जाता है या लोकल मार्केट कहा जाता है। उस लोकल मार्केट मकामी बाजार कहा जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये था मकामी बाजार। इसी तरह से जिलाई बाजार को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक मखसूस मकाम के लोग, एक मखसूस जिले के लोग, एक मखसूस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले खरीदार और फरोशंदे जब एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जिलाई बाजार कहा जाता है, इसी तरह से एक मखसूस रियासत के लोग, एक मखसूस रियासत में रहने वाले खरीदार और फरोशंदे जब एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रियासती बाजार कहा जाता है। इसी तरह से मुल्की बाजार है। एक मुल्क में रहने वाले खरीदार और फरोशंदे जब एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमत का लेन देन करते हैं तो उसे कौमी बाजार या मुल्की बाजार कहा जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसी तरह से बैनुल अक़वामी बाजार है। बैनुल अक़वामी बाजार से मुराद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग, खरीदार और फरोशंदे जब एक
دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اشیاء خدمات کا لین دین کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے بین الاقوامی بازار، انٹرنیشنل مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مقام کے لحاظ سے بھی ہم بازار کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا تھرڈ پوائنٹ جو ہے، یہاں پر جو ہے ہمارا تھرڈ پوائنٹ مسابقت کی بنیاد پر یعنی کمپٹیشن کی بنیاد پر بھی ہم بازار کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا یہاں پر مکمل مسابقتی بازار ہے، پرفیکٹ کمپٹیٹیو مارکیٹ جس کو کہا جاتا ہے، مکمل مسابقتی بازار۔ اس کے بعد جو ہے اجارہ دارانہ بازار، اجارہ دارانہ بازار۔ تیسرا جو ہے چند اجارہ دارانہ بازار۔ چوتھا جو ہے چند اجارہ دارانہ بازار اور اجارہ دارانہ مسابقتی بازار۔ تو دیکھیں گے عزیز طلباء و طالبات، مسابقت کی بنیاد پر بازار کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک مکمل مسابقتی بازار، دوسرا جو ہے اجارہ دارانہ بازار، اجارہ دارانہ بازار۔ تیسرا جو ہے یہاں پر چند اجارہ دارانہ بازار اور چوتھا جو ہے یہاں پر اجارہ دارانہ مسابقتی بازار ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم ایک کو دیکھیں گے۔ یہاں پر مسابقت کی بنیاد پر کہنا چاہیے، کمپٹیشن کی بنیاد پر جو کہنا چاہیے، کمپٹیشن کی بنیاد پر، مقابلہ آرائی کی بنیاد پر بازار کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ مکمل مسابقتی بازار۔ اس بازار کو ڈیفائن کرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے اس بازار کی بازار مکمل مسابقتی بازار اصل میں ہے کیا؟ مکمل مسابقتی بازار دراصل بازار کی وہ کیفیت ہے جس میں بے شمار فروشندے ہوتے ہیں، یعنی اشیاء خدمات کو فروخت کرنے والے بے شمار فروشندے ہوتے ہیں، بے شمار خریدار ہوتے ہیں، یعنی اشیاء خدمات کو خریدنے والے لوگوں کی تعداد بے شمار ہوتی ہے، لاتعداد ہوتی ہے۔ ہم جنس اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے، واحد قیمت پر اشیاء خدمات کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واحد قیمت پر اشیاء خدمات کا فروخت کیا جاتا ہے۔ مزید یہاں پر فرموں کی آزادانہ شمولیت اور اخراج کی آزادی ہوتی ہے، اخراج کی آزادی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے نقل حمل کے اخراجات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حکومت کی مداخلت نہیں ہوتی اس بازار کے اندر۔ تو بازار کی ایسی کیفیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکمل مسابقتی بازار کہتے ہیں۔ ایسا بازار جس کے اندر بے شمار فرمیں ہوتی ہے اور ان تمام فرموں کے درمیان جو ہے مسابقت ہوتی ہے، اشیاء خدمات تمام فرموں میں کی تیار شدہ اشیاء خدمات کے درمیان مسابقت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس چارٹ کے ذریعے یہ ایک بازار ہے۔ اب یہاں پر ایک فرم جو ہے یہاں پر اے فرم ہے، دوسری فرم یہاں پر سی فرم ہے، تیسری فرم یہاں پر سی فرم، بی فرم ہے، یہ ڈی فرم ہے، یہ ای ہے، یہ ایف ہے، یہ آئی ہے، یہ جے ہے، یہ کے ہے، یہ ایل ہے، یہ ایم، یہاں پر این، اب دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ، ایسی بے شمار فرمیں ہیں۔ یہ فرمیں ہیں، فرم کسے کہا جاتا ہے؟ پیداواری یونٹ کو، پیداوار کرنے والی یونٹ کو ہم فرم کہتے ہیں۔ فرم جو ہے پروڈکشن پروڈیوس کرتی ہے، یعنی پیداوار، اشیاء خدمات کی پیداوار کرتی ہے، اسے فرم کہا جاتا ہے۔ تو فرم سے مراد پیداواری یونٹ ہے۔ اب یہاں پر دی گئی ہے اے بی سی ڈی ایف جی ایچ، جتنے بھی ایسے بے شمار ہیں، بے شمار ہے، الفابیٹ ختم ہو جائیں گے لیکن فرموں کی تعداد بے شمار ہے۔ اب یہ تمام فرمیں جو ہے ایک ایسی اشیاء کی پیداوار کرتی ہیں جو ہم جنس ہیں۔ ہم جنس سے مراد ایک ایسی شے کی پیداوار کرتے ہیں کہ جو
एक दूसरे का हम जिन्स है। हम जिन्स होने से मुराद, होमोजीनियस प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर ये है कि ये ऐसी अशिया और खिदमत की पैदावार करते हैं जिनका रंग एक है, जिनकी साइज एक है, जिनका वजन एक है, जिनकी पैकिंग एक जैसी है, जिनकी खुशबू एक जैसी है, जिनका जायका एक जैसा है, जिनकी स्मेल एक जैसी है, जिनका इस्तेमाल एक जैसा है, जिनकी अफादियत एक जैसी है। ये ऐसी अशिया और खिदमत की पैदावार करते हैं। तो ये तमाम फर्मों की पैदावार जो है इस बाजार में, इस मार्केट के अंदर पहुंचता है। अब ये फर्में जो है, ये तमाम के तमाम फर्में जो है, अब इनके कहने का मतलब ये है, इनके प्रोडक्ट की कीमत जो है एक होती है, इनकी पैदावार की कीमत एक होती है। आई फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है हम जिन्स अशिया, उसकी बाजार में कीमत वही होगी। बी फर्म की कीमत वही होगी। सी फर्म की तैयारशुदा अशिया खिदमत की कीमत वही होगी। डी फर्म की तैयारशुदा अशिया खिदमत की कीमत वही होगी। एक जी एच आई जे के ऐसे वगैरह वगैरह जितनी भी फर्में, लातादाद फर्में हैं, बेशुमार फर्में हैं, तो इन तमाम फर्मों की पैदावार, तैयारशुदा अशिया खिदमत की कीमत एक होगी बाजार के अंदर ये तमाम फर्में दरअसल कीमत को कबूल करने वाली होंगी, यानी बाजार में जो राइज कीमत होगी उसी कीमत पर अपनी शय, अपनी पैदावार को बेचने पर ये तमाम फर्में मजबूर होगी, क्योंकि बाजार में उनकी तैयारशुदा अशिया खिदमत की हमजिन्स पैदावार मौजूद है, हमजिन्स शय मौजूद है जिसकी कीमत वही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर फॉर एग्जांपल इन तमाम की तैयारशुदा अशिया खिदमत की कीमत बाजार में ₹1, तो ये तमाम फर्में अपनी पैदावार को ₹1 पर फरोख्त करने पर मजबूर होंगी। अगर कोई फर्म इसमें से कोई फर्म अपनी रसद को रोककर बाजार में शय की रसद को मुतासिर नहीं कर सकती, बाजार में यानी रसद को रोककर अगर ये फर्म फॉर एग्जांपल सी फर्म है, अब ये फर्म चाहती है कि उसका प्रोडक्ट जो है एक ₹1.25 के अंदर फरोख्त तो हो, तो ये फर्म क्या करेगी, अपनी रसद को रोकेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रसद को रोकेगी तो बाजार के अंदर उस शय की रसद मुतासिर होगी, बल्कि उस शय की रसद मुतासिर नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बेशुमार फर्में हैं जो शय की पैदावार कर रही हैं और इसकी रसद रोकने से बाजारी रसद मुतासिर नहीं होगी और शय की कीमत भी मुतासिर नहीं होगी। अगर ये अपने प्रोडक्ट की कीमत 1.25 रखता है तो इसका प्रोडक्ट बाजार में कोई सारिफ नहीं खरीदेगा, क्योंकि वही चीज जब सारिफ को ₹1 में दस्तयाब है मुख्तलिफ फर्मों की, तो सारिफ उन चीजों को खरीदेगा 1.25 की का ये प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा यहाँ पर ये निकलेगा कि सी फर्म नुकसान से दो चार हो जाएगी और वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। तो अजीज तुलबा और तालिबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में बेशुमार फर्में होती है और यानी बेशुमार फरोशंदे होते हैं, खरीदने वालों की तादाद बेशुमार होती है और अशिया खिदमत हम जिस अशिया की पैदावार की जाती है वो वाहिद कीमत पर तमाम फर्में अशिया खिदमत को फरोख्त करने पर मजबूर होती हैं और इस तरह से फर्मों की आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। नकल अमल के इखराजात को नजरअंदाज किया जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर करेंगे कि हर फर्म का जो है मार्केट से डिस्टेंस मुख्तलिफ होगा। कोई फर्म मानगांव में होगी, कोई महाड़ MIDC में होगी, कोई फर्म पनवेल में होगी, कोई फर्म मुंबई में होगी, कोई फर्म दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगी, कोई फर्म दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगी, थाना डिस्ट्रिक्ट में होगी। अब इन तमाम फर्मों का प्रोडक्ट जो है महाड़ के बाजार में आता है, तो नकल अमल के इखराजात को भी जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर जो फर्म होगी उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, यानी अशिया खिदमत को, पैदावार को मार्केट सनद से लेकर मार्केट तक पहुंचाने के इखराजात ज्यादा होंगे और नतीजतन ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, प्राइस के अंदर शामिल होता है, कीमत के अंदर शामिल होता है। जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है तो प्राइस ज्यादा होती है, जब
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होता है तो प्राइस कम होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता अजीज तुलबा और तालिबात। यहाँ तमाम फर्मों को नकल अमल के अखराजात को नजरअंदाज करना पड़ता है। नकल अमल के अखराजात नजरअंदाज किए जाते हैं, नकल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है, और जो फर्में जो है नुकसान से दो चार होती है वो फर्में जो है वो कंपटीशन से निकल सकती हैं, या आज़ादी होती है। और जो फर्में जो है कंपटीशन करना चाहती हैं, जो फर्में जो है शामिल होना चाहती है, वो हम जिनस अशिया की पैदावार करके मार्केट के अंदर शामिल हो सकती हैं, मुसाबिकत के अंदर शामिल हो सकती हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात इसके अंदर नकल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है, और फर्मों की आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है, और आज़ादी होती है। फर्में जो है कीमत कबूल करने वाली होती है, मुतवाज़िन कीमत पर अशिया और खिदमात को फरोख्त करने पर फर्में मजबूर होती है। और यहाँ पर जो है और मजीद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्में जो है मुतवाज़िन कीमत पर अशिया और खिदमात को फरोख्त करने पर फर्में जो है मजबूर होती हैं, फर्में मजबूर होती हैं। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मजीद यहाँ पर जैसे बहुत सारे नुकात हम यहाँ पर ले सकते हैं कि हुकूमत की अदम मुदाखलत होती है, हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं होती। बाजार की इस कैफियत को हम मुकम्मल मुसाबिकती बाजार कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार किसे कहा जाता है, तो ये मुकम्मल मुसाबिकती बाजार है। अब मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की बहुत सारी खूबियां हैं और खुसूसियात हैं। तो पहली खूबी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, खरीदार फरोशंदों की तादाद ज्यादा होती है, या इसको इस तरह से आप लिखो, बेशुमार फरोशंदे, ऐसे लिखो, जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर बेशुमार फरोशंदे होते हैं, बेशुमार फर्में होती है जो हम जिनस अशिया की पैदावार करती हैं, हम जिनस अशिया पैदा करती हैं, ऐसी फर्मों की तादाद बेशुमार होती है जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। तो अजीज तुलबा और तालिबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में बेशुमार फरोशंदे होते हैं, और एक फरोशंदे की हैसियत, एक फरोशंदे का मकाम या हैसियत हम कह सकते हैं कि समुद्र के पानी में झाग के बराबर होता है। झाग से मुराद, जब समुद्र का पानी हलचल करता है तो समुद्र के किनारे जो है एक तरह बबल्स आते हैं, झाग आता है, तो उस झाग की कोई हैसियत नहीं होती, उस झाग की कोई हैसियत और कोई मकाम नहीं होती। या इसको दूसरे अल्फाज में आप इस तरह से बयान कर सकते हैं कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में फरोशंदों की तादाद बेशुमार होती है, और एक फरोशंदे की हैसियत समुद्र में एक बूंद पानी के बराबर होती है। एक बूंद पानी अगर समुद्र से निकाल लिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से यहाँ पर बेशुमार फरोशंदे होते हैं, एक